Good evening, Namaskar, Adab. My name is Shahryar Zaidi, and you are watching Z Talks. After a brilliant start to my live stream, which I had planned for 7 p.m. Today, of course, it didn't go well. मुझे नहीं पता अब कि लाइव स्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों आ रही हैं. आई हैव गॉन आउट ऑफ ऑप्शंस. सो अब मैं उस बारे में और बात नहीं करने वाला. मोस्ट प्रॉब्ली नाउ ऑल द फ्यूचर पॉडकास्ट आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड वंस if this is how it is going to happen. Anyway, so uh, today we today's topic of the podcast is discussing the year gone by or the season gone by for Manchester United. And to discuss this, I have a very special, my very special friend and guest with me, Mr. Tanmay Chakravarti. And Tanmay, you are on the screen now. Welcome to Z Talks. Okay. How are you, Shahriyar? I'm doing okay. After the brilliant start, I I'm can doing understand. great. क्या बताऊँ मैं. But anyway, coming to मजा आ गया. coming मजा आ गया. आहा. Yep. Coming back to our podcast, so I would like to first of all introduce Tanmay Chakraborty to you. Uh, he runs a YouTube channel by the name of This Football Podcast, where he discusses obviously football, and he his major and to tell more about it, I would like to ask Tanmay only to introduce this football podcast to everyone. Okay. So basically, all the viewers who are watching it, whenever they are watching it, so this is something that me and Shahriyar wanted to start for a very long time. हम दोनों ने काफी कुछ सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे. But this Mm-hmm. the coronavirus pandemic has basically helped us to कि हम नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखें. सो दिस फुटबॉल पॉडकास्ट वाज एक्चुअली अ नेम विच आई केप्ट बिकॉज मेरे को द फुटबॉल पॉडकास्ट नहीं मिल रहा था डोमेन नेम. सो दिस Obviously. फुटबॉल पॉडकास्ट इज बेसिकली टू मेक श्योर कि जितने भी इंडिया में देर आर लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ फुटबॉल इन इंडिया हु डू फॉलो प्रीमियर लीग एंड द ला लीगास ऑफ योर वर्ल्ड एंड योर सेरियाज ऑफ द वर्ल्ड. बट दीज पीपल मेजरली उन लोगों के यही रहता है कि वो आपस में जो आपस में लोग हैं वही लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फुटबॉल. एंड व्हेन आई से आपस में इन द मीन दैट मीन्स कि अगर कोई यूनाइटेड फॉलोअर है तो वो यूनाइटेड अपने सपोर्टर्स के बीच में डिस्कशंस रहती हैं. अगर कोई चेल्सी फॉलोअर है तो वो अपने में ही डिस्कस कर रहे होते हैं. सो माय पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल वाज टू मेक श्योर कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जहाँ पे वो आपस में डिस्कस कर सके about the games that are coming in. So I started somewhere in June 2020, and then I got in touch with brilliant guys from Red Army Kolkata. I've got in touch with Delhi Capital Blues for Chelsea, then MUFC Goa, MUFC Delhi, NCR. A lot of these people, Arsenal Delhi, Delhi Cop. So a lot of people I got in touch with and discussed few games. So this is तो अब इस प्रमोशनल पिच के बाद लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द पॉडकास्ट टॉपिक एंड ओके. सो yeah. लेट मी टेल यू दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हम दोनों का ही फेवरेट क्लब है. एंड दिस इज आल्सो इट्स लाइक वन ऑफ दोज कॉमन पॉइंट जिसकी वजह से हम लोग की कॉलेज में फ्रेंडशिप स्टार्ट भी हुई थी. एंड ऑब्वियसली Yeah. ऑल दो मैं तन्मय से फुटबॉल बहुत ही बेटर खेलता हूँ, बट उसकी नॉलेज इस गेम के बारे में मेरे से ज़्यादा है. Hmm. हाँ मतलब. खुद ही हंसी आ गई बोलकर. हाँ, तो I mean you Yeah. understand that. Yeah, I used to play football very well at Yeah. one point of time. Yeah, but okay, not going to those details again. So let's start with the topic, which is Manchester United and their season, which went Uh-huh. by. First of all, uh, Uh-huh. how do you describe it? Was it good, bad, mixed? If you have to just describe it in like one word first, let's start like build it up. So for me, it was an average season. It could have been way worse than what it is, or it could have been way better than what it is Okay. actually. So
फॉर मी बहुत ही एवरेज सीजन था. Yeah, so reason being, when the season started, nobody expected United or Ole to do well this season. Major at one point of time, I saw ESPN एक बारी relegation battle discuss कर रहा था और उसमें 8 टीम्स थी जिसमें से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड भी थी. क्या बात कर रहा है. So that was early in the season when United was somewhere in the 13th, 14th position after like 7, 8 games maybe. But they were discussing relegation battle, and we were in the mix with your Aston Villas and your Newcastles and your Crystal Palaces and your other teams, Norwich वगैरह. And then there was Manchester United. हाँ मतलब सुन के वैसे So मैं इतना कोई मेरे को शॉक्ड नहीं हूँ और ना ही कोई मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन भी होगा. नहीं बट नहीं, या see, at the end of the day, I'm not saying, see, मेजरली वो चीज ऐसी लग रही थी कि इट वाज मोर ऑफ द ऑन द लाइंस ऑफ मॉकरी, बिकॉज वो मॉक करना चाहते थे यूनाइटेड को. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इतना बड़ा क्लब तो है कि वो रेलीगेशन बैटल नहीं कर रहा होगा, मे बी अ मिड टेबल फिनिश. हमने जितने भी हमारे बेकार सीजन रहे हैं इससे पहले, आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, कोई भी सीजन रहा है, इफ यू वांट टू पिक अप द मॉयस सीजन और वैन हाल सीजन और मोरिनियो सीजन, हम अभी भी 7 से ज्यादा लो हमने फिनिश नहीं करा है. सो रेलिगेशन बैटल अगर हम 17, 15 ऐसे पोजीशन पे कर रहे होते फिनिश, तो मुझे समझ में आता कि हम रेलिगेशन बैटल पे हमें पूछ रहे हैं, हमें डाल रहे हैं वो. But anyway, so it was nobody expected good things coming out of the season. And obviously जो सीजन था वो एवरेज इसलिए रहा है क्योंकि हम जिस पोजीशन में हमने एंड करा है, हम उससे बहुत बेटर कर सकते थे. It is the first time I told you as well this thing, that this is the first time जब 31 years में हमने 3 season has gone by जहां पे हमने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है. So but we did reach I believe 3 cup finals. कार्लिंग कप में हम फाइनल सेमीफाइनल, सॉरी 3 कप सेमीफाइनल्स. हाँ So कब के नाम बताइए. so कार्लिंग कप, FA कप एंड यूरोपा लीग, राइट. एक सेकेंड, ये So कौन से सीजन की बात हो रही है. इसी सीजन की बात हो रही हाँ सॉरी ओके. हाँ है. मतलब एफए कप So में हम लोग सेमीफाइनल में नहीं हार गए थे. हाँ, तो हम अभी रीच सेमीफाइनल पोजीशन तक ना. तो फाइनल सो क्यों बोल रहा चेल्सी है. से हम सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल हाँ we reached 3 semifinals. And obviously semifinals में और finals में it's a bit of luck factor also. Obviously how you play definitely matters, हाँ but थोड़ा बहुत luck factor भी होता ही है. तो मतलब अगर हम 3 में से एक भी कप जीत पाए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस में आउट हो गए, लाइक व्हाट अदर, लाइक दूसरी टीम्स जो जिनको बहुत ही हाईली प्रेज करा जा रहा है. जैसे कि लाइक चेल्सी को बहुत मैं सुन रहा हूँ, कि बहुत ज्यादा प्रेज करा जा रहा है बिकॉज व्हाट लैम्पार्ड डिड दिस सीजन. हाँ बट देन आई वाज लाइक यार, वो लोग भी, उन लोगों ने भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती है. दे फिनिश्ड लोअर देन अस, इवन दो वो गोल डिफरेंस में ही था, बट स्टिल. सो एनीवे, मतलब ओवरऑल अगर मैं सोचूं तो फॉर मी इट वाज अ वेरी एवरेज सीजन. वी कुड हैव डन वे बेटर एंड वी कुड हैव डन वे वर्स. मतलब सीजन बहुत ही बकवास भी हो सकता था. एंड डेफिनेटली देयर विल बी पॉइंटर्स कमिंग इन द पॉडकास्ट, आई बिलीव, वेयर वील डिस्कस कि क्या वो चीजें थी जहां पे हमने, जो एब्सोल्युटली टर्निंग पॉइंट था बेसिकली, एब्सोल्युटली टर्निंग पॉइंट थे सीजन में, वेयर वी एंडेड. एब्सोल्युटली. सो अब उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, वेर यू थिंक दैट यू नो इट वाज एन एवरेज सीजन, फॉर मी इट वाज, आई मीन कंसिडरिंग जो हम लोग की एक्सपेक्टेशंस हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब से होती है और होनी चाहिए भी, इट वाज अ बिलो एवरेज सीजन. मतलब आई डोंट नो, मतलब वी हैव द मनी, वी हैव द प्लेयर्स, वी, मतलब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में यू कांट लुक फॉर एक्सक्यूजेस कि नहीं यार ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ. और मतलब यू आर द अमंग द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, राइट. मतलब कल को अगर, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब कल को अगर कोई भी बड़ा क्लब हो, बार्सिलोना है, बायर्न म्यूनिख है, उनके भी मैनेजर्स चेंज हुए हैं, दे हैव आल्सो गॉन थ्रू ट्रांजिशंस, बट इतना अपहीवल तो मतलब मैंने आई गेस और किसी के क्लब में इतना फॉलो किया नहीं है, ना ही इतने इस लेवल पे देखा है कि कंसिस्टेंटली इतने ईयर्स में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा खास रही नहीं है.
Would you like to Hmm. correct me first of all? डेफिनेटली अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि किसी और कोई क्लब जो बहुत ही प्राइम में था अपने और फिर वो एकदम से गायब हो गया और इट्स नोवेयर टू बी सीन, सो आई बिलीव देयर आर टन्स ऑफ अदर टीम्स एज वेल जो जिनके साथ ऐसा हुआ है. एक तो हमारे ईपीएल में ही है आर्सेनल, जिनके साथ ये चीज हुई है बिकॉज दे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर चैलेंजिंग फॉर टाइटल्स एंड historically देखा जाए तो they are the third most successful club in England. Agreed. From 90s till mid 2000s वो लोग बहुत चैलेंज करते थे, टाइटल्स जीते भी हैं, इनविंसिबल भी जीते हैं. अगर तुम यूरोपियन स्केल पे अगर मुझसे पूछोगे if there is a club जिसके साथ ऐसा हुआ है, then you have a very good example in AC Milan. AC Milan Oh is yes. regarded as one Oh of yes. the biggest clubs of all time. You have got players like Maldini coming out of that club. Ronaldo Shevchenko. played for that club. Big Shevchenko played for that club. Hernan Crespo played for that club. So बहुत सारे players, and they have won seven Champions League as well. And right now, if you talk about AC Milan, there is nowhere to be. AC Milan is nowhere to be seen. शायद चैंपियंस लीग में भी नहीं देखते हैं वो तो मुझे. So हाँ, सो वो लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं ना. एंड वो तो मतलब यूनाइटेड तब भी एक दो बार, पांच तीन चार बार क्वालिफाई कर चुके हैं चैंपियंस लीग में, इवन आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन. बट एसी मिलान तो बहुत नीचे चली गई है. सो ये चीज होती है. वन थिंग जो मैं इसको बोलता हूँ कि जो रीजन है इस चीज का, वो रीजन ये था कि व्हेन सर एलेक्स फर्ग्यूसन लेफ्ट, he has done brilliant job as a Manchester United manager and one of the greatest, if not the greatest, managers of all time. But the point is, when he left Manchester United, he did not leave the club in a very good structure because when he क्यों? left, Why do you say so? when he, so I'm telling you that. So when he left, our team was an aging team. जब वो छोड़ के चले गए थे तो विद इन विद इन 2 to 3 years डेली उस टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो नहीं थे. एंड नॉट ओनली दैट, जब ये सारे प्लेयर्स चले जाते हैं, मे बी हम टेक्निकली उनके जितने प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को लेकर आ सकते हैं टीम में, बट द पॉइंट इज वो एक लीडरशिप जो होती है ड्रेसिंग रूम में एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें भी एक साथ ही मतलब चली जाती है. सो एज आई told you the names of the players, Vidic, Ferdinand, backbone of our defense, and then your Evra left, Scholzi and Giggsy left after a couple of years time. So ये सब जब चले गए और हमारी टीम एक एजेंट टीम थी, फिर यंगस्टर्स आ रहे थे. सो जो ये था कि जैसे अब मैं अगर फॉर एग्जांपल बोलूं, एंड आई एम वेरी एनवियस ऑफ दिस क्लब मैनचेस्टर सिटी. व्हेन पेप गार्डियोला वाज कमिंग इन, they were building the team for Pep Guardiola since 2013. वो बिल्ड कर रहे थे, अपना पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे कि जब वो आएगा तो उसको हम एकदम प्लेट में सजा के देंगे कि भाई ये तुम्हारे प्लेयर्स हैं, ये तुम्हारा ट्रांसफर बजट है, ये हमारी एकेडमी है, अब तुम बताओ कि कैसे तुम्हें क्या करना है. सो जब एलेक्स फर्ग्यूसन छोड़ के जा रहा था तो उसने नेक्स्ट जो भी हमारा होने वाला था, दो डेविड मॉयस बिकेम द नेक्स्ट मैनेजर, उसके लिए कुछ अच्छे से बनाकर नहीं गया था वो कि हाँ ठीक है. वो जब गया था विद इन 2 years, कोई भी मैनेजर आता उसके लिए मुश्किल होता क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जा रहे थे, प्लस द बैकरूम स्टाफ लेफ्ट. विद सर एलेक्स फर्ग्यूसन द बैकरूम स्टाफ लेफ्ट. विद सर एलेक्स फर्ग्यूसन डेविड गिल लेफ्ट, हु वाज अ मास्टर नेगोशिएटर. हमारी जितनी भी डील्स होती थी वो नेगोशिएट करता था डेविड गिल. All the big deals, your Ferdinand deal from Leeds United, your Rooney deal from Everton, your Cristiano deal from Sporting Lisbon, वो ही करता था, डेविड गिल ही करता था. डेविड गिल लेफ्ट and we gave the position to a person who helped Glazers to become the owner of Manchester United, which is Ed Woodward.
सो हमने एक ऐसे बंदे को दे दिया जो ऑब्वियसली बहुत ही फ्रूगल माइंडेड है, वेरी सिमिलर टू आई वुड से डैनियल लीवी ऑफ टॉटेनहम। सो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो इतना खराब था दैट इट वाज बाउंड टू एंड बैडली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड नथिंग एक्सेप्ट थ्रोइंग मनी to make it better. I still remember 2014 we had Falcao, Rooney, and Van Persie as our strikers. We had Angel Di Maria, we had Schneiderlin, Schweinsteiger as midfield options, and बहुत ही ज्यादा अच्छी टीम थी। when you talk about कि मैं नेम्स की बात करूं कि भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं ये सारे, करेक्ट करेक्ट बट देन but then obviously structure नहीं था, कुछ भी नहीं था, and it was bound to fail for whosoever was coming in. And now I feel जब ओले आ चुका है तो he is kind of uh, trying to structure the club as well. जितने भी हमारे डेडवुड्स हैं, he made sure that Alexis Sanchez left for free. Ashley Young छोड़ के जा चुका है, Lukaku छोड़ के जा चुका है. Lukaku was a good player, but then his attitude was not right for Manchester United at that point of time. And then Andreas Pereira की बात हो रही है कि वो निकल जाएगा, and वेलेंसिया निकल गया, रोहो को बाहर भेज दिया, स्मॉलिंग को बाहर भेज दिया. सो काइंड ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स जो हम पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं, अच्छा भी नहीं करते हैं, हम उनको देख के वैसे ही घबरा जाते हैं. मतलब डिफेंस में बॉल आती है और स्मॉलिंग और जोन से हमें पता है कि गोल पड़ने वाला है. सो 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 काइंड ऑफ रिमूविंग दीज प्लेयर्स वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सबको हटाएं और हम मे बी यंगस्टर्स को चांस दें, या फिर जो अच्छा कर रहे हैं फिर स्काउटिंग करें और बेटर स्काउट्स लेकर आए. बिकॉज व्हेन एलेक्स फर्ग्यूसन केम इन, बट जस्ट टू इंटरप्ट इन यू इन दिस अगेन, हम लोग बहुत पीछे चले गए और हम लोग सिर्फ लास्ट सीजन पे नहीं स्टिक कर पाए. माय पॉइंट मतलब लेट्स टॉक अबाउट व्हिच वाज द सीजन व्हिच वेंट. द क्वेश्चन स्टार्टेड ऑफ बाय कि कोई और ऐसी टीम, मेरे को तुमने जब बोला कि कोई और ऐसी टीम नहीं पता, वही मैं कह रहा हूँ. सो या डेफिनेटली देयर आर टीम्स. वो पॉइंट बिल्कुल सही है. मतलब लाइक इफ यू लाइक शेडिंग लाइट ऑन दिस एंड मुझे इस बारे में पता लग रहा है, आई डिडंट नो अबाउट दिस. और मुझे नहीं लगता किसी भी एवरेज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को इस बारे में पता होगा कि स्ट्रक्चर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था. बिकॉज पहली बात तो इन सब चीज़ों के बारे में इतनी बात करी नहीं जाती है, ठीक है. एंड सेकेंडली उनकी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, हमें फर्क नहीं पड़ता तो जीतना ही, हमें जीतना ही चाहिए. ऑब्वियसली मतलब और ये एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है एट द एंड ऑफ द डे. मतलब इफ देयर इज अ बार्सिलोना फैन, उसको फर्क नहीं पड़ता. मतलब बार्सिलोना के हमारे जितने हमसे ज्यादा मैनेजर चेंज हो गए हैं बार्सिलोना के शायद से ज्यादा, बिकॉज इन द लास्ट 8 years वी हैड 4 मैनेजर्स, आई बिलीव उससे ज्यादा ही चेंज हुए हैं बार्सिलोना में. वही मैं कह रहा हूँ. एंड मतलब बार्सिलोना का भी वो अप एंड डाउन रहा है, बट वही मतलब नाउ. बट लेट्स कम टू द लास्ट सीजन नाउ. average performance, that is something that we have agreed upon. Why the average performance? हम लोगों ने जो स्टार्ट ली एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफर मार्केट, हमने क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी? कोई प्लेयर लिया जो हमें नहीं लेना चाहिए था? डिड वी ओवरस्पेंड समवेयर? क्या तुम मेरा इशारा समझ रहे हो मैं किस तरफ जा रहा हूँ? Exactly, yeah. But anyway, but did we miss any opportunity also in terms of transfer market? Yes. So last season, during the summer transfer window, we were linked with Bruno Fernandes. Okay. There were only 2 clubs in England who were linked with Bruno Fernandes. One was Tottenham and one was Manchester United. And for some reason, we did not go ahead with that. अब मुझे पता नहीं, यूनाइटेड ने बोला कि मतलब देयर वर न्यूज़ कमिंग आउट कि हम इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम पे समर्स में. बट मेरा पॉइंट ये था, मतलब मुझे ये लगा कि फिर 6 महीने में उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इंटरेस्टेड हो गए, तुमने उसको बाय करा. Definitely, if we would have purchased him in the summer of 2019, I believe we would have ended up in 3rd position. But हम maybe points में better off होते, maybe somewhere in the 70s, mid 70s. He could have definitely helped. After coming to Manchester United, I guess उसके सबसे ज़्यादा goals और assist, मतलब goal contribution है उसके सबसे ज़्यादा. So
इवन इफ आई थिंक कि वो जिस रेट से उसने लास्ट के 6 महीने खेला, लास्ट के 9 मैचेस खेले उसने, अगर वो उसी रेट से पहले 27 मैचेस खेल लेता, सो आई बिलीव 27 या 29 मैचेस खेल लेता, तो वो केविन दे ब्रोने के भी गोल कंट्रीब्यूशन को क्रॉस कर जाता. हम्म So Kevin De Bruyne has been awarded the best player of the last season. So हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि चलो उतना भी नहीं करता तो एटलीस्ट उससे कम भी करता तो भी बेटर रहता. बट और एंड लाइक एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम कमिंग अर्लियर इन द सीजन, इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अप द टीम मोराल. मतलब आप, अगर आपका स्टार्ट ही इतना अच्छा हो जाए सीजन का एंड देन यू आर बिल्डिंग अप ऑन दैट, तो ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर हो जाती है. मतलब इन टर्म्स ऑफ द टीम डायनेमिक्स ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यार एक प्लेयर, मतलब कि, मतलब अगर टीम ही अच्छी नहीं कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है टीम में. एक चीज़ जो ये मुझे समझ नहीं आती, मैनचेस्टर यूनाइटेड की इतनी वेरिएबिलिटी क्यों है उनकी परफॉर्मेंस में. मतलब लाइक वी विल बी डूइंग सो वेल, 10-12 मैच, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रीक पे चल रहे थे इस बार, एंड सडनली व्हेन द क्रूशियल मैचेस कम, भाग देते. सेमीफाइनल सो आएगा, कोई बेस कोई बड़ा, मतलब कार्लिंग कप का सेमीफाइनल, वो तो इतना मेजर भी नहीं नहीं, है. मतलब हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली वो हमें लगता ही है. आई बिलीव आई सेंट यू अ लिस्ट जिसमें आफ्टर लॉकडाउन हम्म टॉप 10 प्लेयर्स जिसने सबसे ज्यादा खेला है, आउट ऑफ दोस 10 प्लेयर्स 6 प्लेयर्स वर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो वी हैव टू कंसिडर एट व्हाट लेवल दे आर प्लेइंग. मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड को मतलब ये एक्सेप्टेबल था जो उन्होंने जैसा जैसे परफॉर्मेंसेज आई सेमीफाइनल्स में या फिर ऐसा कुछ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है. मतलब ओले गनर सोल्स्कार राइट नाउ हैज अ स्टार्टिंग 11 विच ही ट्रस्ट्स कि हाँ भाई ये डिफेंडर है, ये मिडफील्डर्स हैं और ये मेरे अटैकर्स हैं. हम्म बट उसके बाद जब वो अपने बेंच में देखता है, उसको बेंच में कोई ऐसा दिखता ही नहीं जिसको वो सोचता है कि यार चलो मैं इनको स्टार्ट कर दूं. एंड इज इट दैट्स द सो? ओनली रीजन व्हाई ब्रूनो फर्नांडिस, पॉल पॉगबा, रैशफोर्ड, मार्शियल, ग्रीनवुड played hell lot of games. Maguire played hell lot of games. अगर हमारे पास स्क्वाड डेप्थ होती जैसे अब मैनचेस्टर सिटी है या फिर लिवरपूल है या इवन चेल्सी है, when they look into their bench, they can bring in, I'm talking about City, they can bring in Mahrez instead of Bernardo Silva. They can bring in Rodri instead of Fernandinho. They can bring in, लास्ट सीजन तक साने था उनके पास इंस्टेड ऑफ स्टर्लिंग. सो उनके पास इतना स्क्वाड डेप्थ है कि वो ये चीज कर सकते हैं. हम जब अपने प्लेयर्स के नाम लेते हैं, सो हम ग्रीनवुड को बिठा के माटा को लाते हैं हु हैज लॉस्ट हिज स्पेस. हम्म हम रैशफोर्ड को हटा के हम लिंगार्ड को लाने की बात करते हैं हु हैजंट who scored just one goal in the whole of the last season and never did not made any assists. तो मिडफील्डर्स में हम पॉल पॉगबा को हटा के स्कॉट मैकटोमिने को लाते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग दिस स्कॉट मैकटोमिने इज अ वेरी यंग लैड, बट देन पॉल पॉगबा का लेवल और फिर स्कॉट मैकटोमिने के लेवल पे बहुत डिफरेंस आ जाता है. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई फील कि जो थोड़ा फटीग था, दैट डेफिनेटली अफेक्टेड यूनाइटेड्स परफॉर्मेंसेस. थक गए थे प्लेयर्स, उनके चेहरे पे दिखाई देता था. रैशफोर्ड थका हुआ लगता था, ब्रूनो फर्नांडिस बहुत थका हुआ लगता था. सो डेफिनेटली फटीग वाज वन ऑफ एंड द यू सेइंग रीजंस कि व्हाई ये फेल्ट. इन फटीग ने इट इम्पैक्टेड देयर परफॉर्मेंस, स्पेशली इन द क्रूशियल डेफिनेटली मैचेस. डेफिनेटली हम्म डेफिनेटली हम्म बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट में मैचेस हमने यूनाइटेड प्लेड अ हेल लॉट ऑफ गेम्स. 9 गेम्स के बाद हम every एफए other कप team, में भी just थे. like every other team. नो नो नो, सो नॉट एवरी अदर टीम. हम एफए कप में भी थे, हम यूरोपा लीग में भी थे और हम ईपीएल भी खेल रहे थे. और सारी और टीम्स ये सारी चीजें नहीं खेल रही थी. चेल्सी चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी थी. लेस्टर सिटी सिर्फ प्रीमियर लीग खेल रही थी. तो ऐसा जो हम जिनके इर्द गिर्द थे प्रीमियर लीग में, मैं सिर्फ उन्हीं टीम्स के नाम ले रहा हूँ. सो And still we came up एवरी on अदर टीम top. डिड नॉट, हाँ, so every other team was not playing as much as United was playing. That's my point. हम्म so yeah, so we were discussing कि एक तो हमने ब्रूनो फर्नांडिस मिस किया. Any other player in Hmm. the last transfer market? I don't feel, but see, जो लास्ट ईयर जब हमने लुकाकू को सेल करा था तो एवरीबॉडी वाज लाइक यूनाइटेड शुड बाय अ स्ट्राइकर.
because nobody was confident enough that Martial can score many goals, or maybe he needs another couple of seasons. But then I don't know, मतलब मैं फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता हूँ. मार्शियल, ग्रीनवुड और रैशफोर्ड ने सलाह, माने और फर्मिनो से ज्यादा कंट्रीब्यूट करा ईपीएल में. ओके सॉरी, सीजन में. ओके दैट्स समथिंग, माइट भी तेरे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट ये फैक्ट है. ओके सो सो पूरे सीजन में रैशफोर्ड, मार्शियल और ग्रीनवुड ने सलाह, माने और फर्मिनियो से ज्यादा गोल्स मारे हैं. ओके बट तो मैं उसको नहीं कह सकता कि वहां पे यूनाइटेड को चाहिए था कोई. बट डेफिनेटली अभी अगर मैं देखूं कि लास्ट सीजन, देखो, एट द एंड ऑफ द डे सबके पास एक लिमिटेड बजट ही है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है और फिर कितने भी पैसे हम डाल सकते हैं. सो वी बॉट बट दैट अ ट्रेजर सेंटर इज वेरी बैक. बिग. वो लिमिटेड पैसा हमारे दैट पास ट्रेजर काफी इज ज्यादा है. वो लिमिटेड पैसा काफी ज्यादा है, बट सब कुछ तुम एक जगह पे नहीं, तुम एक बारी में स्पेंड नहीं कर सकते. ऐसा हम नहीं कर सकते. बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे रूल्स हैं, हम नहीं कर सकते. एफएफपी है. आई नो एफएफपी हैज बीन मेड अ जोक बाय मैनचेस्टर सिटी, बट देन हम वैसे नहीं डील करते हैं. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें. हम वी स्पेंट क्लोज टू 150 मिलियन pounds last season, which is a good enough amount of money to be spent in a transfer season. We got Harry Maguire. We needed a centre back, and it was very important that we got Harry Maguire. We got Aaron Wan-Bissaka, who has played brilliantly this season. Then we माय got Daniel James. फेवरेट प्लेयर हीरा है वो. हीरा We got जिस Daniel James. हीरा निकाला है जिसने भी निकाला उसको. सी, हाँ ठीक है, अच्छा प्लेयर है, मैं मना नहीं करूंगा. ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द लीग एज वेल, अगर कोई भी कंसिडर करना चाहता है तो. बट देन वी गॉट डैनियल जेम्स, व्हिच वाज आउट ऑफ नोवेयर. ही played really well for the first couple of months, but then after that he was nowhere to be found. So we did spend close to 150 million pounds. So I feel even this season we need to spend that, at least that much of amount to be at least because मैं अगर दूसरी टीम्स को देखूं, चेल्सी हैव डेफिनेटली स्ट्रेंथेंड देयर टीम, and Liverpool and Manchester City are already way better than Manchester United. So अगर मैं ये बोल दूं कि ये टॉप 3 यही हैं, चेल्सी, सिटी एंड लिवरपूल, तो हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन है जिसके लिए आर्सेनल भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, टॉटनहम भी लड़ेगी, इवन वुल्व्स आर प्लेइंग गुड, लेस्टर सिटी भी आ जाती है कभी ना लेस्टर कभी सिटी मिक्स इज में. आल्सो देयर. सो हम 4-5 टीम्स है जो एक पोजीशन के लिए लड़ रहे होंगे, एंड टू मेक श्योर दैट हम वो पोजीशन इजीली ग्रैब कर ले, वी हैव टू स्पेंड. तो लास्ट सीजन आई डोंट थिंक सो कि लास्ट सीजन यूनाइटेड और किसी के साथ इतना ज्यादा लिंक्ड भी थी. डेफिनेटली अगर हम ब्रूनो फर्नांडिस को परचेज कर लेते इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन वुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट. आई बिलीव हम तब भी थर्ड ही फिनिश करते एट मैच. बट हाँ, पॉइंट्स टैली थोड़ा सा डिफरेंट होता और हमें इतना फाइट नहीं करना पड़ता कि लास्ट डे तक हम चैंपियंस लीग की पोजीशन पे जा रहे हैं. फर्स्टली इट इज सैड टू मतलब डिस्कस कि हम लोग टॉप स्पॉट की जगह हम लोग थर्ड और फोर्थ स्पॉट की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड की. पहले 2 स्पॉट तो जा चुके हाँ हैं. लेट्स नॉट इवन डिस्कस दैट, हाँ व्हिच यूज्ड टू नेवर बी द हाँ केस एट स्पेशली द टाइम ऑफ सर फर्ग्यूसन. सो आई डोंट नो, आई मीन बीइंग अ यूनाइटेड फैन सिंस ये चाइल्डहुड, तो वो छोड़ो, वो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब उसमें हम फिर से इतने पास्ट में नहीं हाँ जाएंगे. बट या, बिल्कुल. लेट्स नाउ डिस्कस कि टू स्ट्रेंथन अप आवर टीम इन द कमिंग सीजन, हाँ हु शुड वी हाँ बाय, किसके लिए हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, वेयर द होल हाइप, आई मीन विच प्लेयर इज ऑल हाइप्ड अप. वन नेम दैट आई नो इज सैंचो, विच यू हैव टोल्ड मी अर्लियर. सैंचो को लेने में, एंड रियो फर्डिनेंड has also praised him a lot and said in a lot of interviews कि Manchester United should make all the efforts to get him to the team. Uh, so yeah, what are your thoughts? मतलब Sancho तो है, anyone else apart from him, or if you want to discuss more about Sancho, कि why he is such a big deal right now for Manchester United. See, Sancho for me is a mixed bag. He's going to improve the team. बहुत ही ज़्यादा अच्छा player है. In the past season, he contributed to 34 goals in ओके Bundesliga, सॉरी 17 टू goals in. इंटरप्ट. हमारे अगेन जो हमारी जनरल ऑडियंस जो मेरी तरह है, जिसको नहीं पता कि सैंचो कहाँ खेलता है,
किस क्लब के लिए हाँ खेलता है, किस पोजीशन पे खेलता है, फॉर देम जस्ट लेट देम नो। सो सो सिंस द डेज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमने उसके बाद राइट विंग पोजीशन पे ज्यादा लोगों को देखा ही नहीं है, जो यूनाइटेड की राइट विंग पोजीशन है। करेक्ट। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब स्टार्टिंग में आया था तो उसने डेविड बेकम की पोजीशन ली थी, विच वाज द राइट विंग, एंड देन वो ट्रेडिशनली थोड़ा सा वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे चला गया था। हम्म। बट राइट विंग वाला पोजीशन जो था वो काफी टाइम से खाली है, सिंस 2009 टू बी स्पेसिफिक। हम्म। हमने 2009 में परचेज करा था एंटोनियो वेलेंसिया, हु वाज अ राइट विंगर, बट देन एंटोनियो वेलेंसिया धीरे धीरे राइट बैक बन राइट चुका था बैक हो यूनाइटेड गया के था, लिए। सो यस। हम हाँ सो वो गेम की डिमांड थी, प्लस मे बी उसकी बॉडी उतना ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक है। सो राइट विंग की जो पोजीशन है दैट हैज बीन एम्प्टी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी हैव ट्राइड डिफरेंट प्लेयर्स, वी हैव ट्राइड युआन माटा, वी हैव ट्राइड अदर प्लेयर्स, यानेजे को खिला रहे थे बीच में, बट देन राइट विंग की पोजीशन में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीवन इन यूनाइटेड टीम राइट नाउ। Greenwood is playing tremendously well for his age. He is 18 only, but करेक्ट। the thing is he is a striker. So अगर मैं उसको राइट विंग में खिलाता हूँ so I'll be definitely taking his favorite position, जो उसको खेलनी है, जो कि स्ट्राइकर की पोजीशन है। बट देन हमें डेप्थ भी चाहिए, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, हमें डेप्थ चाहिए। तो सैंचो बुंडेसलीगा में खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फॉर डॉर्टमंड, एंड इन द पास्ट सीजन ही कंट्रीब्यूटेड टू समवेयर अराउंड 34 33 34 गोल्स, विच इज पूरे यूरोप में अंडर टीन्स में ही इज 20 ओनली। So teens में that's the highest. The only player who has contributed to more goals was Messi, I believe. ऐसा कुछ था, मतलब he has done tremendously well. बात ये है. So definitely we should purchase him because that will definitely strengthen our team. But the point is United again. Uh, पता नहीं यूनाइटेड की नेगोशिएशंस में क्या है। यूनाइटेड यूनाइटेड हमेशा, इवन लाइक लास्ट सीजन, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट सीजन, हम जब हैरी मैगवायर को हमने जब परचेज किया, सो हैरी मैगवायर को और कोई कोई भी और दूसरी टीम उसके लिए नहीं वो कर रही थी, बिड नहीं बिड कर रही नहीं थी। कर रही थी। फिर भी हमें बहुत टाइम लगा उसको परचेज करने में। और फिर भी हमने उसको इवन 80 से मिलियन डॉलर्स में लिया। 80 मिलियन पाउंड, ओ सॉरी, 80 मिलियन एंड पाउंड्स, ओ गॉड, डॉलर्स में और भी ज्यादा है। देन सो एरन वैन बसाका का भी सेम थिंग था कि उसको भी हमने परचेज करने में बड़ा टाइम लगाया, एंड देन वी पेड 50 मिलियन और पाउंड फॉर हिम। सो मेरे को ये लगता है कि यूनाइटेड एट द एंड ऑफ द डे विल डेफिनेटली बाय सैंचो। आई फील दैट अभी तो ऐसे न्यूज आ रहे हैं, डॉर्टमंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोल दिया कि सैंचो नहीं जाएगा, बट I feel United will buy him and will spend 120 million euros or pounds, whatever it is, for him. जितना डॉर्टमंड मांग रही है, यूनाइटेड इज थिंकिंग कि अभी इतना करके देख लेते हैं, अभी इतना करके देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं, पर वो एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड को पे करना ही पड़ेगा। सो यूनाइटेड इज ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल। डॉर्टमंड कह रही है कि हमारे पास अगले 3 सीजन के लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, हमें कोई जल्दी नहीं है इसको बेचने की। अब तुम देख लो, तुम अभी इस सीजन तुम नहीं परचेज करोगे, नेक्स्ट सीजन मे बी यूवेंटस और मे बी रियल मैड्रिड विल कम एंड पे द मनी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस सीजन अगर वो हमारी टीम में रहेगा तो हमारी टीम बेटर पोजीशन में ही रहेगी। सो So it looks like बट the आई फील same दैट scene. It looks like a same scene जो हमारा हैरी मैगवायर के साथ हुआ, डेफिनेटली डेफिनेटली कि कॉन्ट्रैक्ट था, हमें चाहिए था, हाँ प्लेयर ने, टीम ने हाँ, कहा खरीदना खरीद लो वरना अगले साल आके कोई और ले लेगा। कोई और ले जाएगा तो तुम देख लो। बाकी वो इस सीजन हमारे टीम में ही रहता है तो फिर वो हमारी टीम को ही हेल्प करेगा टू फिनिश इन अ बेटर पोजीशन। So, Sancho definitely someone we have to look for. We definitely need a partner for Harry Maguire. Harry Maguire definitely helped solidify the defense, but he is super slow. So I feel that another defender, the defender that we are linked with is I don't remember his name, but वो लिल करके एक टीम है फ्रेंच लीग में, उसका डिफेंडर है, तो ही इज अ बुलाया क्यों है यंग यहाँ पे हमने? प्लेयर। अच्छा। ये तो मेरे जवाब है, मुझे नाम So नहीं याद। his name is Gabriel
करके कुछ है, गैब्रियल करके समथिंग, एम से नाम है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस द सेकंड नेम. रुको 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 रुको, we will just find him right now If you want to for, search, yeah, we will just do it for our viewers right now. just What is, search just search for Gabriel Lil. So I'll tell you, his name is Gabriel? Gabriel. If Gabriel? you can pronounce the second name, क्या है भाई, एल है क्या है आगे? Megalhaes. हैं? Megalhaes. जो जो भी है, Gabriel गैब्रियल मोजेस Megalhaes. आ रहा है, गैब्रियल फुटबॉलर सर्च करूं, क्या करूं? You don't have to search, मैंने बता तो दिया. Gabriel Megalhaes करके कुछ ओ, ना कुछ नाम है. गैब्रियल दॉस So he's सैंटोस a, मैगेलिस, ओ माय, yes, yes, दिस इज अ ब्राजीलियन फुटबॉलर. yeah. ओके, एंड इज So प्लेइंग फॉर अभी ये लिल. linked ओके. है there. Yeah. So he's linked with United. He's linked with Arsenal. He's linked with Napoli. So फेवरेट पोजीशन जो है अभी शायद से उसका आर्सेनल जाने का हो रहा है, बट डेफिनेटली यूनाइटेड शुड लुक फॉर हिम. आई फील देर अगर यूनाइटेड को पैसे नहीं खर्च करने हैं, देर इज अ ग्रेट डिफेंडर, हिज नेम इज मलंग सार. He plays again, I believe he also plays for a French सॉरी, league. क्या है, एम ए एल ए So एन जी? Malang, मलंग S A सार, double R, यस, Malang मलंग Sar. सार, फ्रेंच फुटबॉलर, एंड ही प्लेस फॉर, He plays for Nice. यस, ही प्लेस फॉर नीस, दैट्स राइट. ओके. या सो मलंग सार अभी फ्री एजेंट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है. हम्म. So and he's 21 also. So if United want to gamble and they don't want to pay, he, even though he's 21, he has huge experience because वो काफी टाइम से खेल रहा है. वो बेबी शायद से जब वो 18 साल का था, वो 3 साल से लगातार फ्रेंच लीग में खेल रहा है. And he's a good defender and he's pretty fast as well. So I believe United should look for these kind of defenders because I don't see any good defender from the EPL जो यूनाइटेड को साइन करना एंड ही चाहेंगे इज अभी यंग इस ऑल्सो यार, सीजन. 21 साल का ही है. हाँ, वो 21 साल का है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो 21-22 साल के हैं. तो फिर अगर कल को वो ज्यादा अच्छा खेले भी नहीं और ये फ्री है, तो कल को अगर तुम उसको बेचोगे भी तो तुम्हें पैसे मिल ही जाएंगे उसके, मतलब हम्म. फायदा तो हो ही जाएगा. हम्म. So these two players, another player who's linked heavily is your Aston Villa's captain Jack Grealish, but then Aston Villa is asking for somewhere around 80 million pounds. और यूनाइटेड ने अगर उतना पे करा तो यूनाइटेड बेवकूफ होगी क्योंकि वो उतना डिजर्व नहीं करता, बट देन यूनाइटेड की नीड है. सो एट द एंड ऑफ द डे वो नीड एंड डिमांड के ऊपर आ जाती है बात कि भाई डिमांड है और सप्लाई कम है अच्छे प्लेयर्स की, तो ऑब्वियसली अच्छे वो एवरेज प्लेयर्स भी या above average players भी महंगे ही बिकेंगे. हम्म. So that's why we spent 80 million pounds on Harry Maguire last season, because even though but I consider Harry Maguire to be in the top 5 defenders in Premier League at least. इतना अच्छा तो है ही वो. Even like after Van Dijk from Liverpool and Laporte from your City, I don't think so there is any other defender who is as good as Harry Maguire. So yeah, जो भी है. So वो डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज है, तो यूनाइटेड को पे तो करना ही पड़ेगा. सो आई फील अगर यूनाइटेड को पैसे खर्च करनी है तो देयर आर 4 positions which I'll say. One is the right wing wherein we can get Sancho and United should spend on Sancho. Then there is another position which 120. is your ठीक है, लेट्स बजट इट आल्सो. 120 यूरो गए, मिलियन यूरो गए. और yeah, so there's another position which is the defensive midfield position, because I don't think so after Matic we have any other good defensive midfielder. We can try McTominay and Fred over there, but then वो उतने effective नहीं है. United should get अगर उनको decent signing करनी है और अच्छी signing करनी है, तो I believe United should go for Thomas Partey from Atletico Madrid. He will cost somewhere around 50. He has a buyout clause of 50 million pounds, and he is definitely a good player. And he is somewhere around 26-27 years, तो अपने prime age में भी है वो. Then defenders मैंने बता ही दिए, मलंग सार और maybe Gabriel from Lille. And then apart from this, we should get another midfielder in position of Bruno Fernandes, because अगर Bruno Fernandes injured हो जाता है तो हमारे पास उसके जैसा कोई और दूसरा प्लेयर नहीं है who can create out of nothing. So these are the 4 positions. और एक और बात, अगर यूनाइटेड डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में ज्यादा नहीं खर्च करना चाहती है, so I have heard rumors about Kante not
you know, uh, feeling good in Chelsea camp. ऐसा क्या? So if United can because वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा कांटे और चेल्सी के पास भर भर के मिडफील्डर्स पड़े हुए हैं मतलब आई कैन मैं उस दिन उनकी मिडफील्ड पोजीशन के ऑप्शंस देख रहा था दे हैव गॉट कांटे Jorginho, Kovacic, Pulisic, Ziyech. Then they have got Ruben Loftus-Cheek. They have got Ross Barkley. They have got Mason Mount. मैंने 8 प्लेयर्स तो यही बता दिए हैं और भी होंगे उनके पास एक बिली गिलमोर करके भी है and And these everyone all are and decent everyone players. can replace anyone. लाइक डीप लाइंग जो उनको मिडफील्डर्स चाहिए होता है उसके लिए कांटे है जॉर्जिनियो है कोवाचिच है देन अगर उनको विंग्स में चाहिए तो उनके पास पुलिसिच है शिएक है मेसन माउंट भी खेल लेता है विंग में एंड देन उनका जो सेंट्रल मिडफील्ड में उनको चाहिए रॉस बार्कले है लॉफ्टस चीक है मतलब उनके पास ऑप्शंस भर भर के उनका मिडफील्ड भरा हुआ है एंड देन आफ्टर ऑल दीज प्लेयर्स दे आर लिंक्ड विद काई हवर्ट्स आल्सो एंड काई हावर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट यंग मिडफील्डर्स अब मतलब वो भी आ जाएगा तो उनके पास इतने ऑप्शंस पड़े हुए हैं ना मिडफील्ड में अपने अपने टीम को सजाने के लिए कि आई बिलीव यूनाइटेड कैन यू नो एक चीकी बिड डाल के देख लो कांटे के लिए मे बी 20-30 मिलियन पाउंड का बिड डाल के देख लो कांटे के लिए एंड इफ ही कैन यू नो जो उसका फॉर्म था 2016 2017 2018 वर्ल्ड कप तक वो फॉर्म अगर वो हिट करता है तो यूनाइटेड विल बी सॉर्टेड फॉर अनदर 2-3 सीजंस आई बिलीव बट मतलब ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितना डिस्कस किया है तूने अभी उसके हिसाब से हमें करीब आई गेस $200 मिलियन तो चाहिए होंगे इफ नॉट लेस उससे ज़्यादा तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दे हैव टू एंड लाइक दैट्स द ओनली 200-250 रीजन मिलियन ना की कि बात हो रही है इस वक्त जो आई एम वेरी श्योर कि हाँ यूनाइटेड एक इजीली सीजन में नहीं स्पेंड करने वाली लुकिंग एट देयर नहीं पास्ट स्पेंड रिकॉर्ड करने वाली या तो एटलीस्ट सो मतलब अगर मैं बोलूँ हाँ मतलब हाई प्रायोरिटी यूर सेइंग कि एक तो सैंचो तो आ ही जाना चाहिए सैंचो आ लाइक ही जाना चाहिए हाँ and the second priority would be a partner to Harry Maguire पार्टनर because टू हैरी I मैगवायर believe I believe that defense your strikers and your midfielders will help you win games but your defense will help you win trophies that's a saying so United has done pretty well this season even though Harry Maguire को बहुत मॉक किया गया है लिंडेलॉफ को बहुत मॉक किया जाता है but we conceded only गलत नहीं किया 36 है goals आई वुड but we conceded so facts पे बात करते हैं ना जैसे we conceded 36 goals सिटी conceded 35 goals लिवरपूल conceded 33 goals तो हम ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हमने 50-60 ज्यादा गोल खा लिया 10-15 ज्यादा गोल खा लिया हमने 2-3 गोल ही ज्यादा खाए हैं सिटी और लिवरपूल से जिनका डिफेंस बहुत अच्छा माना जाता है लिवरपूल का तो स्पेशली बहुत अच्छा माना जाता है तो आई बिलीव अगर हम यूनाइटेड में मगवायर को एक अच्छा पार्टनर दे दें Dan Bissaka is already a partner for Harry Maguire, right? So I'm talking about a center back partner. अच्छा जैसे हमारे पास फर्डिनेंड एंड विडिच का पार्टनरशिप था हम्म वैसे ही Maguire and Lindelof are like playing two Ferdinands. There has to be a player who can complement your game, right? So जैसे अब Bruno Fernandes है, he complements Paul Pogba. Both have different style of playing, हम्म but then he complements Paul Pogba so that he can play better. Like Van Dijk. Van Dijk क्या करता है अपने साथ वाले प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो और बेटर हो जाए बट देन वैन डाइक जहां पे लैक करता है वो चाहता है कि उसका जो पार्टनर हो एटलीस्ट ऐसा प्लेयर हो जो उसके उस चीज को कवर जहां कर पे वो पाए लैक कर रहा है उस चीज को कवर कर पाए तो हम्म अब मैग्वायर एंड लिंडेलॉफ basically apart from their heading capabilities and those things are one of the same players like both are very slow but they are good on the ball they can pass the ball and everything but they are very slow so Maguire needs a better partner than Lindelof and Lindelof can be a backup to Maguire and so yeah that's partners so basically two players if United have somewhere around 150 odd millions to spend I'll spend it on a partner to Harry Maguire and then your Jadon Sancho because I believe Martial, Rashford, Sancho, Greenwood, Bruno Fernandes are more than enough for the next season at least to score good number of goals. ओके एंड इससे पहले कि हम रैप अप करें तू एक हैरी मैग्वायर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने वाला था तूने कहा था पॉडकास्ट में बताऊंगा So
So Harry Maguire, so news came in today that Harry Maguire was last night, I believe, yeah, last night was in Greece, Okay. and then he was obviously with his friends, and there was another Englishman group, Hmm. and they had a fight, they had a brawl, Hmm. and the brawl was big enough कि आसपास के residents के लोगों ने पुलिस बुला ली. ओ भाई. और And right right now, the as far as the news goes, Harry Maguire is arrested. This is the first time a United ओहो. captain is ओहो. arrested. जेल में है वो. जेल में है And वो, तुम कहना चाह रहे हो? jail mein hai. So to mock this situation, people are coming up with tweets like Harry Maguire has been arrested. Here we go. So if you don't know the here we go concept, so there is a journalist whose name is Fabrizio Romano. He's a great वो सारे ट्रांसफर के न्यूज देता है. अच्छा. सो जब भी वो अपना कोई ट्वीट करता है जिसमें वो हेयर वी गो बोल देता है, दैट मीन्स वो 110% वो डील तो हो ही रही है. ओके. सो सो फब्रिजियो रोमानो का एक ट्वीट था, शायद से फब्रिजियो रोमानो था, या मे बी किसी और ने कुछ फोटोशॉप कर दिया होगा, कि हैरी मैग्वायर इज इन जेल, हियर वी गो, contract has been signed, a 10-year contract, player and player will have his medicals tomorrow. So yeah, everybody is mocking the ओ situation, and भाई then साहब. किसी ने ये नहीं बोला कि Manchester किसी ने United, ये नहीं बताया कि लड़ाई हुई किस बात पे? वो सामने वाले I बंदे ने don't बोल दिया know. होगा कि भाई $80 million पे क्या कर रहा है, ग्रीस नहीं में नहीं, क्या I कर रहा don't know है. what was the what was the लड़ाई स्टार्ट यहाँ से thing हुई है, behind मैं it, बता रहा but हूँ. but yeah, and the Manchester United camp is telling that they knew about the situation that this has happened, which I'm dead sure that Manchester United had no news about whereabouts of Harry Maguire and what he was doing in Greece, and that he got caught in a brawl and everything. So जो भी है, that's the thing. So I have had friends who have tweeted like transfers zero, arrested one. So ओ भाई tweets like बहुत ही these बढ़िया. coming in. बहुत ही बढ़िया. ओ गॉड. So ओ, yeah. अब तो ट्रांसफर तो होगा, बट ट्रांसफर फी नहीं होगी, बेल फी पे करनी होगी अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड बेल को. फी पे करने की. वाह वाह और वाह वाह. एडवर्ड वर्ड बोलेगा पैसे खत्म हो गए. पैसे खत्म हो गए हैं, कोई बात नहीं, जाने दो. अबे भाई, क्या हाल है, क्या हाल है. बट एनीवे, सो Yep. वी वुड रैप अप नाउ. तन्मय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. देख रहा है, तुझे थैंक यू बोलना पड़ रहा है, क्या दिन आ गए. Cheers. Oh, and and thank you so much for sharing this vital information with me and with everyone who has watched this podcast. And guys, will be again coming up with another with the podcast where we'll discuss the season which went by and the season yet to come for another team. And the next time, hopefully, would like me and Tanmay maybe would do it in person while sitting Yep. face to face each other. And yeah, Yeah. and thank you so much for watching this podcast. If you like this podcast, please like, share, and subscribe it. And thank you so much. Have a good day. Ciao. And Yeah. yeah, and also do subscribe to my channel as well. Oh yes. Oh yes. Links My will be in the description. link will be in the description. Please like, share, and subscribe this football podcast also. अभी तक उसकी जितनी भी videos रही Yep. हैं, they have got many more views than mine. He has got some really cool supporter club founders, whether they have been from Chelsea, Manchester United, uh, Liverpool, and they have been from all over India. So yeah, so that is Yep. something very interesting. And again, we will be trying to do the podcast with them in person, so that we are Yes. able, because obviously, as you know, technical glitches बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके के लाइव स्ट्रीम्स पर्सनली करने में. मिलके पॉडकास्ट करेंगे. So we'll try to soon do it in person with them. So thank you so much, everyone. Have a great day ahead. Have a great weekend ahead, and yeah, take care. Bye bye. Bye.